Okay. So we had started with systems with 2 degrees of freedom, and we have already understood now that if the system starts vibrating in such a way so that all points of the system are vibrating harmonically at a single frequency, then there are two possible natural frequencies for the system, and we represent it with omega n1 and omega n2. And it is our desire to find out both the natural frequencies for the 2 degree of freedom system. तो इसके लिए अपन एक मेथोडोलॉजी स्टार्ट कर चुके थे. वी हैड टेकन एन एग्जांपल कि भाई एक 2 डिग्री का सिस्टम ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है जिसको यूज करके हम इसकी फ्रीक्वेंसीज को पता कर सकते हैं. फिर एक मोड शेप्स की बात की थी, प्रिंसिपल मोड्स, नॉर्मल मोड्स, ये सारी बातें आई थी. बेसिकली व्हाट आर प्रिंसिपल मोड्स? प्रिंसिपल मोड्स का मतलब है अगर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वी विल बी हैविंग टू प्रिंसिपल मोड्स. So there are two natural frequencies. So if the system is vibrating in such a way so that all the points, every single part of the system is vibrating at the same first frequency, first natural frequency, then we call it as the first principal mode. And if all the parts of the system are vibrating with a similar frequency, and that happens to be the second natural frequency, then we say that it is vibrating at the second principal mode. Normal modes and principal modes are the same, with the only difference that in normal modes, the amplitude of vibration of at least one of the masses in the system will be equal to 1. 1 centimeter, 1 millimeter, 1 meter, it could be anything, but the measurement of the amplitude should be unity, 1. So that is the concept of normal modes. We will understand more about such principal modes and normal modes later when we fulfill or when we are able to make the mode shapes for our systems. So continuing with this, अभी यहाँ पर नोट्स में तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर एक इस सिस्टम के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसमें k और m की वैल्यूज नहीं ली थी. इसमें m is represented as m only and k is represented as k only. But in the example that we are taking, this is the example that we took. We have taken the first mass as 1 kg, second mass as 2 kg, the first spring as 2 Newton per meter, and the second spring having a constant of 1 Newton per meter. So I had told you that if you look at the strategy or the mathematics that we are going to develop for this particular one, the same procedure has to be repeated for all 2 degree of freedom systems. You will get the same same procedure for all 2 degrees of freedom system. So step 1 है, for your given system construct the differential equations for all masses. तो आपके दो masses हैं क्योंकि 2 डिग्री की बात कर रहे हैं. So we construct differential equation for both the masses. First mass की differential equation अपन ने बना ली थी, and this is y1 double dot is equal to y2 minus 3y1. ठीक है, y1 डबल डॉट का मतलब है y1 वेरिएबल का एक्सेलरेशन. और ये कैसे बनाया था? वी हैड टेकन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर फर्स्ट मास. तो अब सेकंड मास का भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे. सेकंड मास का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर ही बना लेते हैं अपन. लेट अस कंस्ट्रक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर सेकंड मास. अब इस फिगर में देखिए, second mass is connected with only one spring, and that is spring number 2, having a spring constant of 1 Newton per meter. So as per the laws of physics, the only thing that can apply any external force on this body is the spring which is attached to it. ठीक है, बाकी ऑब्वियसली आप ये क्लेम कर सकते हैं कि इसमें mg भी तो एक्ट करेगा, लेकिन mg वगैरह अब इनकी स्टैटिक डिफ्लेक्शन से कैंसिल आउट हो जाती है. So while it is dynamically moving, the only force exerted
on the 2 kg mass is by the 1 Newton per meter spring. तो एक ही चीज फोर्स एक्सर्ट करेगी. So now let us see what will be the direction of the force and what should be the differential equation thereafter. So this is your 2 kg mass, second mass है ये. इसका डिस्प्लेसमेंट अपन नीचे को ले चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड दैट y2 इज ग्रेटर देन y1. ठीक है, तो अब आप ये वापस से इसको इमेजिन करिए, ये जो 1 न्यूटन पर मीटर की जो स्प्रिंग है, इसके ऊपर वाला सिरा तो y1 डिस्टेंस से नीचे आया और इसका नीचे वाला सिरा y2 डिस्टेंस से नीचे आया, और मैं ये कह रहा हूं कि y2 जो है दैट इज ग्रेटर देन y1. तो मेरे को पहले आप ये बताओ कि ये जो स्प्रिंग है ये कुल मिलाकर के खींची हुई है या दबी हुई है? क्या है? इज इट स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड? स्ट्रेच्ड है. अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है यानी खिंची हुई स्प्रिंग 2 किलोग्राम मास के ऊपर कनेक्टेड है. तो एक खिंची हुई स्प्रिंग को आप अगर किसी चीज के ऊपर ले जाके कनेक्ट करें तो वो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर को खींचेगी या नीचे को धक्का देगी? ऊपर खींचेगी. ऊपर को खींचेगी, सीधी सी बात है. ये पिछली क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई स्प्रिंग खींची हुई है तो वो अपने दोनों एंड्स को अंदर की तरफ को खींचेगी, और इसका ये जो बॉटम वाला पार्ट है ये यहां कनेक्टेड है, ये देखो यहां पे कनेक्टेड है, तो ये अंदर को खींचेगी. इसका मतलब 2 kg मास का जो एक्सपीरियंस होगा उसको क्या फील होगा कि ये स्प्रिंग इसको ऊपर को खींच रही है. दैट विल बी द एक्सपीरियंस ऑफ योर 2 kg मास. तो इन चीजों को देखते हुए अब मैं यहां पर सीधे सीधे लिख सकता हूं दैट द फोर्स और द एक्सटर्नल फोर्स and the only force acting on 2 kg mass is in the upward direction. और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड वापस से होगा स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग. इसकी जरा वैल्यू बताए कोई मेरे को, क्या है? व्हाट इज द फोर्स हियर? स्प्रिंग में खिंचाव कितना है? टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग. y2. It is y2 minus y1. स्प्रिंग का जो टोटल खिंचाव है वो कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए, ऊपर वाला सिरा y1 से नीचे को पुश किया गया, नीचे वाला सिरा y2 से नीचे को पुश किया गया, y2 जो है वो y1 से ज्यादा है, तो टोटल स्प्रिंग का स्ट्रेच कितना हुआ? y2 माइनस y1. ठीक है, और अगर डिफ्लेक्शन या स्ट्रेच ऑफ स्प्रिंग y2 माइनस y1 है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 1 न्यूटन पर मीटर है, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग कितनी हुई? 1 into y2 minus y1. हो गया काम खत्म. तो द फोर्स विथ विच द 2 kg मास इज एक्सपीरियंसिंग इज 1 into y2 minus y1, या फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 को लिखो भी मत, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज द फोर्स. ठीक है, और अपवर्ड फोर्स है तो इसका मतलब इसको हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन? अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन is equal to summation of forces. This is Newton's second law, और यहीं से अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है. मास कितना है? 2 kg. एक्सेलरेशन कितना है? देखो सेकंड वाले 2 kg वाले मास का वेरिएबल जो है वो y2 है. सो एक्सेलरेशन विल बी 2 into y2 डबल डॉट. y2 डबल डॉट का मतलब आपको पता है y2 का सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव. ठीक है, इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्सेस. अब इसमें एक ही फोर्स है दैट इज y2 माइनस y1. इट इज अपवर्ड इन डायरेक्शन तो अपन इसको नेगेटिव लिखेंगे. सो माय डिफरेंशियल इक्वेशन इज माइनस ऑफ
y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 फोर्स है, उसको नेगेटिव साइन इसीलिए लगाया क्योंकि वो ऊपर को है और हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान चुके हैं। ठीक है, तो ये आ गई मेरी दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने बॉक्स में पहले ही बंद कर लिया है, दूसरी वाली को भी लिख करके बॉक्स में बंद कर देते हैं। 2y2 डबल डॉट इक्वल टू माइनस y2 माइनस y1 की बजाय मैं इसको लिख लेता हूं y1 माइनस y2। ठीक है क्या? सही लिखा है क्या, देख लो। सर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं करी सर दोनों के। देखो इसका ही मैंने आपको बताया था, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं M2 का, तो आपने ऊपर को तो फोर्स बना ली y2 माइनस y1। ठीक है, आप यही पूछ रहे हो कि इसमें M2G क्यों नहीं लिया, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। देखो आप अपनी बिल्कुल इनिशियल क्लासेस की मेरी लेक्चर जाकर के विजिट करना एक बार, जिसमें अपन ने स्प्रिंग मास सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, when we had actually constructed the differential equation of the simplest system, एक स्प्रिंग और एक मास। तो उस केस में अपन ने ये पता किया था कि अगर आपका स्प्रिंग और मास वाइब्रेट नहीं कर रहा हो तो भी इस पे एक स्टैटिक डिफ्लेक्शन आता है। and mg is always equal to the static deflection force k delta। तो जब वाइब्रेट कर रही होती है आपकी मास, तो वाइब्रेशन के दौरान हर पॉइंट पे mg फोर्स अपनी k डेल्टा फोर्स से अपने आप ही कैंसिल होती रहती है। तो कुल मिलाकर के आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन अब से जब चीजों की बनाएं, तो आपको ये mg, क्योंकि देखो अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हर टाइम स्प्रिंग के अंदर ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन तो मौजूद है ही, क्योंकि आपने मास को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। जब मास को स्प्रिंग से कनेक्ट करोगे तो स्प्रिंग तो अपने आप ही डेल्टा से परमानेंटली खिंच के बैठी हुई है, और उसके बाद होगा उसका वाइब्रेशन जितना भी होना है। तो डेल्टा का स्ट्रेच तो स्प्रिंग में परमानेंट आ चुका है। तो ये जो परमानेंट फोर्स M2G है, ये परमानेंट स्प्रिंग की स्ट्रेच किए डेल्टा से हर टाइम कैंसिल होती रहती है। इट इज ऑलवेज कैंसिल्ड। सो फॉर कन्वीनियंस वी कैन एलिमिनेट दिस व्हाइल वी आर मेकिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ना तो mg लिखो, अगर आप mg नहीं लिख रहे तो k डेल्टा भी मत लिखो। तो अब देखो अपन ने इसकी स्टैटिक डिफ्लेक्शन डेल्टा को लेकर के भी कोई बात नहीं करी। वो क्यों नहीं बात करी? क्योंकि mg की भी बात नहीं करी। दोनों की एक साथ बात मत करो, दोनों बराबर है, काम खत्म हो गया। अब इन दोनों को छोड़ के जो बाकी की फोर्सेस हैं, सिर्फ उसको कंसिडर कर लो। क्लियर हो गया आपको यस सर। कि mg क्यों नहीं लिया? यस। ओके। और mg को लोगे तो फिर डेल्टा को भी लेके आना पड़ेगा इक्वेशन में, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए ज्यादा बेहतर है कि उसके बारे में बात ही ना करें अपन, उसको भूल जाओ आप। अब क्योंकि उसको भूल करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना देखो कितना आसान है। mg को भूल जाओ और k डेल्टा को भी भूल जाओ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बड़े कन्वीनियंटली बनती है, आराम से बनती है। ठीक है, सो एनीवे दिस इज द सिचुएशन नाउ। अब अपना स्टेप नंबर 1 तो हो गया है। तो आपको क्या करना है, वापस से एक बार अपन देखें, अपन ये ना भूल जाएं कि अपन कर क्या रहे हैं। मैथमेटिक्स तो चलती रहेगी, एक एक स्टेप समझते भी जाओगे, बट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द मेन पिक्चर कि भाई कर क्या रहे थे अपन। अपन को 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम की दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है और मोड शेप्स बनाने हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। लेकिन उधर तक पहुंचने से पहला काम यह है, भाई फ्रीक्वेंसीज तो निकालो आप। 2 फ्रीक्वेंसीज हैं इसकी, और इसकी दोनों फ्रीक्वेंसीज निकालो। अच्छा, और एक बात अभी बीच में एक बार पॉज करूंगा। वी आर एक्चुअली टीचिंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, बोथ ऑफ द सेक्शंस आर टुगेदर हियर, राइट? तो
सेक्शन बी के बच्चों के लिए एक बात मैं ये कहूंगा कि डंकरलीज मेथड करके जो टॉपिक आपका सिलेबस में है वो सेक्शन ए के लिए मैंने लैब में कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन मैंने जो रिकॉर्ड किया है उसका लेक्चर वो आपको भी भेजा है, सेक्शन बी को भी भेजा है। और आपके जो लैब के टीचर हैं मिस्टर शोएब अंसारी, उनसे मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि लैब के एक्सपेरिमेंट के साथ साथ वो आपको डंकरलीज मेथड का लेक्चर भी लेके समझा दें, यानी कि लैब में ही आपकी डंकरलीज मेथड की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, आई एम टॉकिंग टू सेक्शन बी ओनली, ठीक है। सेक्शन ए से बात नहीं कर रहा हूं, सेक्शन ए को तो पढ़ा दिया मैंने। सेक्शन बी वालों का डंकरलीज मेथड हो गया क्या, कोई बता सकता है? एनीबॉडी फ्रॉम सेक्शन बी? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना, तो अभी हो जाएगा। आपका एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ होगा डंकरलीज मेथड का? यस सर। एक्सपेरिमेंट हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर शायद। नहीं हुआ ना, जहाँ ठीक तक। है। जब एक्सपेरिमेंट होगा तो आपको सर पढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपके पास में टाइम है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने आपको डंकरलीज मेथड एक्सपेरिमेंट करके जो वीडियो लेक्चर आपके क्लासरूम में पोस्ट किया है स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, ठीक है, उसको एक बार देख लें तो आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और आपके डंकरलीज मेथड की प्रॉपर प्रिपरेशन भी हो जाएगी। यू वोंट हैव एनी डाउट्स एट ऑल। तो इसीलिए वो लेक्चर अगर टाइम मिले तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अभी अपन जो कर रहे हैं डंकरलीज मेथड में हमने ये सीखा था कि वो एक अप्रोक्सीमेट टेक्निक है और वो सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देता है। लेकिन अभी जो अपन कर रहे हैं ये एग्जैक्ट टेक्निक है, यानी कि ये आपको सारी फ्रीक्वेंसीज देगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है लेकिन आपको दोनों फ्रीक्वेंसीज की एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ठीक है। तो एनीवे लेट अस कंटिन्यू विद दिस प्रोसीजर। तो दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने बना ली हैं। अब देखो इसके बाद क्या करना है। नाउ यू अरेंज, और रादर आई वुड से यू रीअरेंज योर डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको अरेंज करने के लिए ये मैं आपको मैट्रिक्स, इसके दो टेक्निक्स हैं। मैट्रिक्स फॉर्मेट इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जो आपको मैं ट्यूटोरियल शीट भेजूंगा अब उसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्मेट से मैंने सॉल्व करके आपको दिखा रखा है। और मैट्रिक्स फॉर्मेट बहुत सिंपल है और आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे सेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे रीअरेंज करूंगा, ये देखिए, y1 डबल डॉट प्लस 3y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? सारे ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट साइड में ले आया, राइट साइड को 0 छोड़ दिया, ठीक है। और एक और चीज मैंने ये की कि इंडेक्सिंग जो है इसकी y1 y2, ठीक है, उस इंडेक्सिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया। यानी कि मैं y2 को पहले नहीं लिखूंगा, y1 वाली टर्म्स को पहले लिखूंगा, y2 वाली टर्म्स को बाद में लिखूंगा और राइट साइड को 0 बनाऊंगा। अब इसी तरीके से आप बताओ कि मैं इस सेकंड इक्वेशन को कैसे अरेंज कर सकता हूं। मैं लिख देता हूं, आप देख के बताना मैंने सही अरेंज किया है क्या, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन वाली टर्म तो अलग है, उसको पहले लिखना ही है आपको। सो 2y2 डबल डॉट ये आएगी। अब जो राइट साइड के जो कंटेंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट वाले, उनको लेफ्ट साइड में लेके आओ और इस तरह से लेके आओ कि y1 पहले लिखा जाए और y2 बाद में लिखा जाए। सो आई विल, व्हेन आई ब्रिंग इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, आई विल राइट इट एज माइनस y1 प्लस y2 इक्वल टू 0। सही है क्या? ये स्टेप समझ में आया क्या आपको? क्या करना है आपको? This is a simple rearrangement step in which both the differential equations of the two masses have been rearranged so that all the contents are transferred to the left hand side. पहली बात, and
The displacement terms are arranged in such a way so that they are in increasing order of their index. यानी कि y1 y2 y3 अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट्स हैं तो y1 की टर्म्स पहले आए, y2 की टर्म्स बाद में आए, इस तरीके से। क्लियर है कि बता दो? यस हाँ सर। अब इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर सकता हूं। देखिए, मैट्रिक्स अलजेब्रा का जो सिद्धांत है या फिर द बेसिक प्रेमिस ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा इज अरेंजमेंट। किसी भी चीज को प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके अगर ग्रुपिज्म कर दिया जाए, अगर ग्रुप बना दिया जाए, तो उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसीलिए अपन इसको प्रॉपर फॉर्मेट में सेट कर रहे हैं कि भाई पहले y1 लिखना, फिर y2 लिखना, फिर y3 लिखना, इस तरीके से। क्योंकि अपनी प्रिपरेशन या प्लानिंग क्या है, इसको मैट्रिक्स बनाने की प्लान है अपनी अभी। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। I am going to make a small matrix of masses. यहां पर लिखूंगा 1, यहां लिखूंगा 0, यहां लिखूंगा 0, यहां लिखूंगा 2, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्सीलरेशन टर्म्स से, y1 डबल डॉट y2 डबल डॉट। अभी मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है, दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, आपको ये बता दूं, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द मास मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन मैट्रिक्स। तो y डबल डॉट लिख दिया। इन जनरल मास मैट्रिक्स और y डबल डॉट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, जरा बता सकते हो क्या? व्हाट विल बी द रिजल्ट? जस्ट एक बार इक्वल टू करके बता दो क्या है। इसका साइज है 2/2 और इसका साइज है 2/1। मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 2/1। बताओ क्या आएगा इसका रिजल्ट? इधर तो आ जाएगा y1 डबल डॉट और यहाँ पे 2y2 डबल डॉट। 2y2 डबल डॉट। तो इस ये जो वेक्टर आ रहा है, ये वेक्टर मेरे को मेरी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशंस में यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो आप, देखा आपने कैसे दिख रहा है मेरे को ये? यस सर। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा था। चलो ये तो हो गया। यहां पर तो मैंने दिखाने के लिए क्या था, यहाँ पे इक्वल टू करके नहीं करना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू वाई आई रोट this much part of my two differential equations in this format. अब आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। मास मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मैट्रिक्स प्लस, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, एक और स्क्वायर मैट्रिक्स ओपन करी और इसमें मैं वैल्यूज रख रहा हूं 3 -1 -1 +1, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल्स की एक वेक्टर से y1 y2। अब आप इतने से पार्ट को, ये देखो इतना सा पार्ट जो मैंने लिखा है, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? यहां पर आएगा आपका, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस तो आता ही है आपको। क्या मिलेगा? 3y1 3y1 minus y2 माइनस y2, ठीक है, -y और माइनस y1 प्लस y2, plus यही y2। मिलेगा। अब आप अपनी Yes, sir. ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां पर आकर के देखो कि क्या ये वाला पार्ट आपको मिला कि नहीं मिला। देखा आपने? सेम चीज आ गई मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से। अब ये जो मैट्रिक्स है,
इस मैट्रिक्स को कहते हैं अपन स्टिफनेस मैट्रिक्स, मल्टीप्लाइड बाय ये जो मैट्रिक्स है इसको कहते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, एंड दिस विल यील्ड द राइट हैंड साइड ऑफ योर आंसर। इसको अगर आप देखें 0 0, यहां पर लिख दो 0 0। दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस योर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो ये तो यहां पर अभी मैंने आपको एक दो इक्वेशंस बनाई और आपको इसको पूरा प्रॉपरली अरेंज करना सिखाया। एक बार थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाए तो इसीलिए मैं रैंडमली एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप मेरे को इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में सेट करके दिखाना। 2x डबल डॉट सॉरी x1 डबल डॉट -3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। ये मेरी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे ही रैंडमली उठा लिया मैंने, ठीक है। मैं सिर्फ आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन इज 3x2 डबल डॉट माइनस या फिर चलो प्लस 10x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान रखना, इसकी देखो ब्लॉक्स कैसे बनती हैं। इसका एक ब्लॉक बनाना है, फिर उसके बाद इसका एक ब्लॉक बनाना है, फिर उसके बाद में राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ब्लॉक्स बनाते हैं। इसके मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। सबसे पहले मास मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये मत कर देना मास मैट्रिक्स को 2 3, ये गलत है। मास मैट्रिक्स कैसे बनेगी? मास मैट्रिक्स ऐसे बनेगी 2 0 0 3, डायगोनल में अरेंज किए जाते हैं ये, ठीक है। दो मासेस हैं 2 और 3, उनको डायगोनल में अरेंज करते हैं और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लो x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट प्लस क्रिएट द के मैट्रिक्स। नाउ के मैट्रिक्स में आपको ये जो कोएफिशिएंट्स है सीधे उठा लेने हैं, -3 +4 +10 -2 उठा के रख दो सीधे सीधे। -3 4 10 -2 के मैट्रिक्स सीधे बन गई। अब उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट के जो वेरिएबल्स हैं x1 x2, उनको एक वेक्टर फॉर्म में वर्टिकली रख दो। ये हो गया इक्वल टू, राइट हैंड साइड के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, 0 0। तो अब मैं कोई सी भी दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दे दूंगा तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में बैठा पाओगे कि नहीं बैठा पाओगे, ये बता दो। यस सर। क्लियर हो गया ना मैट्रिक्स कैसे बनानी है? अब अपन आगे चलते हैं। ये तो एग्जाम्पल था, तो इसको अभी यहां से अपन हटा देते हैं। ये है अपना मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें अपन क्या कर रहे थे। दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, दो मासेस थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस बना करके उसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करके मैट्रिक्स फॉर्म में सेट कर लिया, ठीक है। भैया रीअरेंजमेंट बहुत जरूरी है। आप अगर रीअरेंज करना भूल गए तो मैट्रिक्स गलत बनेगा। अगर आपने y2 को पहले लिख दिया फिर y1 को बाद में लिख दिया और दूसरी इक्वेशन में y1 पहले आ रहा है फिर y2 बाद में आ रहा है, तो आपकी मैट्रिसेस तो बन जाएगी लेकिन उलट पुलट बनेगी और आपका आंसर गलत आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स में पहले अरेंज करना है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स बनानी है। ओके, सो एनीवे वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द मैट्रिक्स। तो बेसिकली आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, मास मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मैट्रिक्स प्लस स्टिफनेस मैट्रिक्स multiplied by displacement matrix equal to 0. This is the matrix equation of a two order या फिर 2 degree of freedom system. चलो अपन अभी इससे तो अपन को कोई फायदा नहीं होगा, ये तो अभी सिर्फ इसका नोटेशन दिखाने के लिए था। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपको ये कहना है, सिंस
the system is in a principal mode, it must be in harmonic motion. प्रिंसिपल मोड का डेफिनेशन ही ये था कि आपका पूरा सिस्टम अगर किसी प्रिंसिपल मोड पे वाइब्रेट कर रहा है तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे हार्मोनिक मोशन पे सारे के सारे उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए पाए जाएंगे। तो आपने कहा कि भाई मैं प्रिंसिपल मोड पे मान रहा हूं सिस्टम को और उसी पे उसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। तो अगर ये एक प्रिंसिपल मोड पे वाइब्रेट कर रहा है देन आई कैन क्लेम कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट y1 है और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट y2 है they must be in simple harmonic motion. So I can say that let y1 be equal to capital Y1 sin omega t and let y2 be capital Y2 sin omega t. अब इसमें ये ओमेगा जो है ये दोनों सेम आएगी और इन दोनों में कोई फेस डिफरेंस भी नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज प्रिंसिपल मोड की डेफिनेशन आपको यही कहती है कि ऑल सिस्टम्स आर वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली, यानी कि इन फेस विथ ईच अदर, they are in phase with each other and they are vibrating at the same frequency. एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अगले स्टेप में ये करोगे, मैट्रिक्स इक्वेशन तक अपन ने बना ली। अब आप ये कहोगे कि ये जो मेरे y1 और y2 हैं ये जो है ये हार्मोनिक हैं। तो हार्मोनिक हैं तो मेरे को ये ओमेगा अभी पता नहीं, ये तो मैं पता करूंगा अभी, यही मेरा उद्देश्य है टू फाइंड दिस ओमेगा। ठीक है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि भाई प्रिंसिपल मोड में है तो मेरा y1 जो है वो सम एम्पलीट्यूड y1 टाइम्स साइन ओमेगा टी होगा और y2 जो है वो सम एम्पलीट्यूड y2 टाइम्स साइन ओमेगा टी होगा। और ये ओमेगा है जो अपन को अभी पता करना है। और एक बार ओमेगा पता लग जाए फिर अपन ये y1 और y2 भी पता कर लेंगे। अभी तो अपन फिलहाल इसको ऐसा मान लेते हैं। तो अगर y1 मेरा y1 साइन ओमेगा टी है और y2 मेरा y2 साइन ओमेगा टी है तो इसके साथ साथ मैं एक और काम कर लेता हूं। y1 डबल डैश कितना होगा ये भी बता दो कोई मुझे। सही है क्या? यस सर। और y2 डबल डैश कितना होगा? राइट। यस सर। अब y1 की ये वैल्यू, y2 की ये वैल्यू, y1 डबल डैश डबल डॉट की ये वैल्यू और y2 डबल डॉट की ये वैल्यू सीधे ले जा करके आप अपनी मैट्रिक्स इक्वेशन में डाल दीजिए। तो क्या होगा? अब मैं यहां पे थोड़ा सा इस एरिया को क्लियर कर देता हूं ताकि इसी के नीचे लिख दें अपन। Substituting these things in your matrix equation, I should get something like this. 1 0 0 2 is the mass matrix हो गया and this becomes y1 डबल डॉट कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर y1 साइन ओमेगा टी। This is minus omega square y2 sin omega t plus 3 minus 1 minus 1 1 multiplied by, अब y1 और y2 क्या है? y1 sin ओमेगा t, y2 sin ओमेगा t, ये भी पुट कर दो। इक्वल टू 0 0। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना स्मॉल y1 और स्मॉल y2 तो वेरिएबल्स हैं, कैपिटल y1 कैपिटल y2 एम्पलीट्यूड्स हैं जो अभी नहीं पता बाद में पता हो जाएगी। ओमेगा हमें पता करना है तो अब कम से कम ओमेगा आ गई आपके पिक्चर में, पहले तो ओमेगा कहीं दिख भी नहीं रही थी।
अपन यही पता करने के लिए निकले थे कि भाई किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है ये। तो इससे पहले तक तो कहीं ओमेगा पिक्चर में था ही नहीं, अब आ गया। ठीक है, तो एनीवे इसके आगे क्या करना है, इसके आगे सीधे सीधे एक सिंप्लीफिकेशन। लेट मी शो यू कि ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको दिखने में लगेगा कि यार ये इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, बट एक्चुअली इट इज इमीडिएटली गोइंग टू गेट सिंप्लीफाइड। देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर साइन ओमेगा टी और माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं। सो आई एम राइटिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी multiplied by 1002 into capital Y1 capital Y2 plus 3 minus 1 minus 1। और इसमें भी साइन ओमेगा टी कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेता हूं, तो इसको पहले ही मैं लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा था। साइन ओमेगा टी टाइम्स 3 minus 1 minus 1 1 कैपिटल Y1 कैपिटल Y2 इक्वल टू 0 0। सही किया है कि जरा देख के बता दो, कोई गलत तो नहीं किया मैंने काम? नो सर। सही है ना? यस सर। अब देखो, मेरी मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी ये पूरा एक टर्म है प्लस ये पूरा एक टर्म है इक्वल टू एक टर्म है। ठीक है, तो दो टर्म्स हैं मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड की जो दो टर्म्स हैं उसमें क्या आपको साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या? और राइट साइड पे 0 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर 1002 y1 y2 प्लस 3 minus 1 minus 1 1 y1 y2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन ओमेगा टी टाइम 0 0। क्या कहते हो, सही है? सही है क्या? या नहीं है? क्या हुआ, नहीं समझ में आया? बताओ, कोई तो बोलो। हाँ सर। सही है ना? यस सर। और चूंकि ये 1/sin⁻t जो है, अब ये मैं मैट्रिक्स के अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या होगा, 1/sin⁻t इंटू 0, 1/sin⁻t इंटू 0, दोनों जगह पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सब नील बटा नील हो गया, सीधे बस वापस से राइट साइड में बचेगा सिर्फ 0 0। ये 0 0 मैट्रिक्स 1/sin⁻t को अंदर खींच के खा जाएगा, 0 हो जाएगा वो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं वापस से इन दोनों टर्म्स में देख रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये y1 y2 वाली जो मैट्रिक्स है ये भी कॉमन है। ठीक है, तो अगर ये कॉमन है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली जो दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं वो दोनों अपन कॉमन लेके ऐड कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डू अनदर कन्वर्जन। आई एम गोइंग टू डू लाइक दिस, माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 1002 प्लस 3 minus 1 minus 1 1। इस पूरे को तो एक ब्रैकेट में रखा और होल मल्टीप्लाइड बाय y1/2 इक्वल टू 0। सही है क्या? देख के बता दो भाई। यस सर। और थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना, क्योंकि आप जब चुप रहोगे तो मैं ये समझ रहा हूं कि इधर यू आर नॉट लिसनिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर एक लड़का या दो लड़का भी मेरे को कोई यस सर या नो सर कुछ भी बोलोगे तो कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, सो इज दिस ओके और नॉट, यू टेल मी। यस सर। ठीक है ना?
अब देखो Yes. ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वाली जो टर्म्स हैं, मैं इसको ऐड कर देता हूं। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को अंदर ले लेता हूं। ठीक है, सो दिस विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 0 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, अब जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोनों 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं वो ऐड हो जाएगी, तो उसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। दिस विल बिकम 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए, फिर 0 और -1 ऐड होंगे तो -1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 और -1 ऐड होंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -2 ओमेगा स्क्वायर और 1 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y1 y2 इक्वल टू 0। सही है क्या, देख लो। Yes, sir. अब आगे चलते हैं। फाइनली अपने दो डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रखा, हार्मोनिक मोशन अज्यूम किया प्रिंसिपल मोड के लिए, और ओमेगा के टर्म्स में आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन को देख करके मैं दो ही निष्कर्ष निकाल सकता हूं। आई हैव वन मैट्रिक्स containing omega. I have another matrix containing the amplitudes, and the product of these two matrices is definitely 0. ठीक है, तो अब इसका एक ही निष्कर्ष हो सकता है भाई, अगर आपको कोई ये कहे, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में है, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक नंबर है a और मेरे पास एक दूसरा नंबर है b, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को 0 रिजल्ट मिल रहा है, तो अब आप क्या कहोगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं 3 स्टेटमेंट्स कह सकता हूं, आप मेरे को बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है a 0 है b 0 नहीं है, तो 0 आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है b 0 है a 0 नहीं है, तो भी 0 आ जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट है a और b दोनों 0 है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आप बताओ। अच्छा, आपका आंसर ये भी हो सकता है कि कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है। व्हाट डू यू थिंक? सर ए कोई भी और बी दो दोनों नंबर का जीरो है, ये प्रोडक्ट कर गलत रहा है। हूं, 0 आ रहा है, तो अब इनमें से 3 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो a 0 है, या तो b 0 है, या फिर दोनों ही 0 है। तो कौन सी बात झूठ है, गलत बात कौन सी कही मैंने, सही कही कि नहीं कही? तीनों बातें सही है कि नहीं सही है? Yes, sir. है ना? अब यही लॉजिक अपन मेट्रिसेस पर एग्जैक्टली तो नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत एप्लीकेबल ये अभी भी होगा। वो मेट्रिसेस पे एग्जैक्टली इसीलिए नहीं लगता क्योंकि मेट्रिसेस की साइजेस अलग अलग है। दो नंबर्स जैसे ए और बी ले लिए, वो तो सिंपल नंबर्स हैं, लेकिन मेट्रिसेस आर नॉट सिंपल नंबर्स, दे आर कलेक्शंस ऑफ नंबर्स। सो यू कैनॉट से कि एक मैट्रिक्स पूरी की पूरी 0 हो जाए, तो उसके लिए आपको सारे उसके अंदर की एंट्रीज को 0 करना पड़ेगा। तो अब मैं ये बोल रहा हूं, जस्ट कंसिडर दैट दिस इज ए मैट्रिक्स, this is B matrix, and you are getting a 0 matrix as the product of these two. तो अब मैं वही क्वेश्चन आपसे यहां पूछूंगा, क्या B मैट्रिक्स 0 हो सकती है क्या? B मैट्रिक्स को 0 होने का क्या मतलब है? B मैट्रिक्स के 0 होने का मतलब है कि आपकी y1 और y2 दोनों 0 है, यही मतलब हुआ ना, है कि नहीं? Yes. लेकिन क्या y1 और y2 0 हो सकते हैं क्या? बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ वाइब्रेटिंग सिस्टम, आपके दो मासेस हैं। देखो ये पूरी कहानी किसकी है? ये इन दोनों महाशयों की कहानी है। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू मासेस 1 kg एंड 2 kg विच आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग, जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इनका एम्पलीट्यूड भी आएगा, फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड y1 निकल रहा है और दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड y2। तो ये तो y1 और y2 तो एम्पलीट्यूड आपके आंखों के सामने दिख रहा है,
तो क्या ये जीरो हो सकते हैं? नो सर। जो आप आंखों से देख रहे हो कि भाई ये उछल कूद मचा रहे हैं एक एम्पलीट्यूड के साथ, तो इसका मतलब एक चीज तो तय हो गई कि बी मैट्रिक्स कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकती। तो अब एक ही चीज बची, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स जीरो होगी। यही मतलब हुआ ना भाई? आपने ये बोल दिया मैं दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जीरो आ रहा है, और एक चीज सिद्ध हो गई कि बी जो है वो जीरो नहीं है, तो फिर क्या निष्कर्ष निकला? फिर तो ए ही जीरो है। अब तो यही एक कंडीशन बच गई ना। तो इस कंडीशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब, ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ सच मैट्रिसेस मींस सीधा साधा सॉल्यूशन, यानी कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिसमें मेरे को y1 और y2 पता नहीं है और जीरो आंसर आ रहा है। तो ट्रिवियल बात तो ये हो गई, या सीधी सादी, या बिल्कुल बच्चों जैसी आसान बात हो गई कि y1 और y2 दोनों को जीरो कर दो साहब, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा, ओमेगा पता करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिवियल सोल्यूशन। लेकिन हम ये जानते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि y1 y2 एक्चुअल एम्पलीट्यूड्स हैं, ये एक्चुअल मासेस की मोशन को दिखा रही है, हम देख रहे हैं अपने आंखों से। तो y1 और y2 तो जीरो है ही नहीं, दे आर नॉट जीरो। ये हमने पहले ही कह दिया, पक्का हो गया। तो इसका मतलब है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेड। तो अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, देन वी ऑप्ट फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि अब ए मैट्रिक्स को देखो, क्योंकि बी तो जीरो नहीं हो सकती, आपने मना कर दिया, तो अब ए मैट्रिक्स ही जीरो होगी। अब मेरे को यह बताओ कि ए मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक वर्टिकल कॉलम मैट्रिक्स से कैसे कंपेयर किया जाए? यू कैनॉट कंपेयर इट। सो हाउ कैन यू मेक ए मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो? तो आप ये कहते हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का जब भी अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो अपन ये नहीं कहते कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। इंस्टेड यू से दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो। ये मैट्रिक्स एल्जेब्रा के अंदर के सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं। तो अपन अभी मैट्रिक्स एल्जेब्रा की पूरी रिवीजन तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं इसको सॉल्व करते दौरान आपको इसकी झलकियां दिखा रहा हूं, और आप इन सारी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स को ध्यान से याद कर लें, मन में रख लें। ठीक है? तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब भी आता है, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन बना हो गया। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता? कि बी मैट्रिक्स जीरो हो जाती, तो आपकी सारी परेशानियां हल हो जाती। भाई y1 और y2 दोनों को जीरो मान लिया होता तो अपने आप ही जीरो आ जाएगा, सब कुछ मल्टीप्लाई करके देख लो, सब जीरो हो गया। लेकिन अगर वो चीज अलाउड नहीं है, तो आपके पास में बच गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में अब स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ देखना पड़ेगा, जिसको कि जीरो एक नंबर की तरह नहीं बना सकते। तो आप क्या कहोगे कि आप एक नंबर की तरह इसको जीरो नहीं बना सकते, तो फिर तो अब एक ही चारा रह गया कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ये पक्का हो गया अब, 100% गारंटी आ गई कि द डिटर्मिनेंट इज जीरो, 100%। ठीक है, डन हो गई बात। तो अब आप क्या करोगे? एज सुन एज यू कंसिडर दिस इक्वेशन, आपको इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया। इन योर आंसर कॉपी you just write this: considering non-trivial solution, we get। अब ये जो ए मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट को जीरो कर दो। तो अब मैं क्या लिखूंगा? आई विल सिंपली राइट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये आपको पता है। मैट्रिक्स के लिए ऐसे ब्रैकेट वाला बनाते हैं। तो 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 -1 एंड 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ये तय हो गई बात। ठीक है,
ये सब क्यों हुआ? क्योंकि राइट साइड 0 है, इसीलिए ये सारी कहानी इतनी बिगड़ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट बताओ कैसे निकालते हैं? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ऐसे ही निकालते हैं ना डिटर्मिनेंट का वैल्यू। आता है कि नहीं यस आता ये? यस सर है ना? यस तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस -1 इंटू -1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें अपन, ठीक है? ये आ जाएगा 3 माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा रेज टू पावर 4 -1 इक्वल टू 0। सही है क्या? जरा चेक करके बता दो भाई, मेरे से भी हो सकती है गलती। सही है सर। सही है। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 2 ओमेगा रेज टू पावर 4 सबसे बड़ा पावर है, पहले लिख दिया, -7 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, वापस से ध्यान रखें कि अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था। वी वांटेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है? ओमेगा की स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है क्या इसमें? यस सर। You can see that we have a quadratic equation in omega square. तो ओमेगा स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लो, ओमेगा ही पता करना है ना आपको। तो फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, अब आपको वो फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपकी ऐसे होती, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। If this is your general quadratic equation, then the root of x is plus minus, sorry, minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। याद है ना क्वाड्रेटिक यस इक्वेशन के? सर। तो ओमेगा स्क्वायर के रूट्स अब बताओ मेरे को क्या आएगा? आपकी इक्वेशन सामने है, मेरे को कोई एक जना जो थोड़ा भी कॉन्फिडेंट हो बताते जाओ क्या क्या लिखूं मैं। माइनस बी, बी क्या है इसमें? -7। -7 -7। तो माइनस ऑफ -7 हो गया +7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 7 7 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए है 2, सी भी 2, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 16 16 16। होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि 2 इंटू 2 4, ठीक है? इसको जरा कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मेरे को ओमेगा स्क्वायर के दो रूट बता दो। एक तो मेरा आया 3.186, सही है ना? यस सर। और एक आ रहा है मेरा, अच्छा दो रूट हैं, तो मैं ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ। या फिर आप इसको, क्योंकि वैसे ही अपन को पता है कि यही आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल के आनी है, तो इसको ओमेगा n1 स्क्वायर और ओमेगा n2 स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, यही चीज है। कितना आ रहा है सेकंड वाला, कितना आ रहा है? 0.318।
7 minus under root of 49 minus 16 divided by 4. 0.314 सही है क्या? यस लेकिन अपन को ओमेगा का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, अपन को तो ओमेगा चाहिए। तो अब क्या करोगे? व्हाट इज ओमेगा n1? अंडर रूट ऑफ 3.186 कितना आ गया? 1.785 रेडियंस पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। एंड सिमिलरली ओमेगा n2 इज अंडर रूट ऑफ 314 0.561 0.56। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ओमेगा n1 या ओमेगा n2? सर ओमेगा n2 दिस इज योर फंडामेंटल और फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा एक प्रैक्टिस होती है कि जो छोटी फ्रीक्वेंसी है उसको 1 इंडेक्स दो और जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको आगे 2 3 4 इंडेक्स दो। तो अब अपन एक रिप्लेसमेंट और कर देते हैं। हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन एथिकली और एस्थेटिकली ज्यादा बेटर यही है कि फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी शुड बी ओमेगा n1। ठीक है, तो आप इसको रीराइट कर दो। रीराइटिंग ओमेगा n1 इज पॉइंट, ये कितना था? 0.56 था क्या? यस 0.5 सर गलत लिख दिया शायद, है ना? 0.56 0.56 0.56 radians per second. Now this is your answer. And omega n2 is 0.1785. Sorry, 1.785. इस तरीके से अपन इसकी दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। ठीक है, अब आप एक काम कीजिएगा, मैं आज आपके साथ में ये ट्यूटोरियल शीट नंबर 3 शेयर करता हूं। इस ट्यूटोरियल शीट नंबर 3 में आप प्रॉब्लम नंबर जितने भी मैंने येलो हाईलाइट कर रखे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 10th को छोड़ दो, ये रोटरी सिस्टम 10th को छोड़ दो, 14th को छोड़ दो, ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, सो योर टास्क और रादर योर होमवर्क फॉर टुडे, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, इन 3 प्रॉब्लम्स के लिए दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकालिए आप। ठीक है, इसके आगे की मोड शेप्स और ये नोडल पॉइंट वगैरह की बात करता है, उसको छोड़ देना, उसको छोड़ दो। आप सिर्फ अपने जो तरीका मैंने सिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस बना करके मैट्रिक्स फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। नहीं, पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट में ओमेगा को इंट्रोड्यूस करेंगे बाय टेकिंग हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेंगे, ओमेगा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको रूट्स निकाल करके ओमेगा n1 ओमेगा n2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये आधा प्रॉब्लम ही होता है आपका। डिटरमिन नेचुरल फ्रीक्वेंसीज एंड मोड शेप्स आता है अधिकतर, तो मोड शेप्स बनाना मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, और रोटरी सिस्टम्स को डील करने का एक शॉर्टकट टेक्निक मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ दो, 10th और 14th को। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इसकी दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज जो आएंगी, तीनों 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की सिस्टम्स हैं, तीनों की दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आप लोग इस टेक्निक से निकालेंगे। दिस इज एन एग्जैक्ट टेक्निक, सो प्लीज make it a point to do these questions as practice questions. तो आज अपन यही स्टॉप करते हैं। आई विल टेक योर अटेंडेंस नाउ। आज जो समझाया सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको समझ में आ गया ना? कोई ऐसा तो नहीं है ना कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो? नो सर चलो ठीक है।